آج ہمارا 12th سیشن ہے دور قرآن 2021 میں. آپ سب کو تہہ دل سے میں ویلکم کرتی ہوں. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. میں میری پیاری بہن مریم کو دعوت دیتی ہوں تلاوت قرآن اور ترجمے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں سورہ انعام کی آیت 33, 34 and 35 تلاوت کرنے والی ہوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبر تمہیں پہنچ ہی چکی ہے. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر شمع. اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا کرے. میں اب میرے ٹیچر روزی باجی کو انوائٹ کروں گی تفسیر سورہ انعام کی ہمارے سامنے رکھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم. الحمدللہ ہم لوگ ابھی سورہ انعام میں پہنچ چکے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ جو سورہ پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ سورہ مدنی سورہ تھی. یعنی مدینہ میں تب ایمان والوں کا ہاتھ میں باغڈور تھا، ایک اسٹیٹ بن گئے تھے، اور اسی ٹائم کیا ضرورت تھا کہ وہ اسٹیٹ کو چلانے کا.
अल्लाह की अहकाम के मुताबिक, अल्लाह जिस तरह चाहते हैं उस अहकाम के मुताबिक स्टेट लेवल, फिर सोसाइटी भी, माशरा भी, और लोगों का पर्सनल लाइफ, फिर जंग लड़ाई भी हुए, उसी में जो शहीद हुए, फिर विडो हुए, यतीम हुए, जो भी उन लोगों के बारे में, बिजनेस, लेन देन, फिर जो चोरी डकैत, हर चीज़ें के बारे में जो कानून चाहिए वो तमाम चीज़ें अल्लाह ने बता दिया। ये सारे सूरा में ये हम लोग ये देख रहे थे, और साथ साथ आदल, इंसाफ, ये भी, और तमाम अहकाम, अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किया है वो अहकाम अल्लाह को डरते हुए उसे मानो। इसी तरह हम लोग पढ़ते आ रहे थे पिछले सूराओं में। अभी सूरा अनाम ये मक्की सूरा है। मक्की में ये सूरा मक्की दौर का ऑलमोस्ट आखिर हिस्सा में नाजिल हुआ था। मक्की दौर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या था, कौन चीज का था कि अकीदा तौहीद का। लोग ये यकीन ही नहीं कर पाते थे कि सिर्फ एक ही अल्लाह का इबादत किया जाए। अल्लाह तो है लेकिन अकेले, सिर्फ उनको अकेले इबादत करेंगे, अकेले उन्होंने पूरा तमाम का जरूरत पूरा करेंगे, ये लोगों का यकीन में नहीं आता था। फिर जो रिसालत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, हमारे दरमियान थे, अचानक रिसालत मिल गया, ये भी उन लोगों का यकीन में नहीं आता था। और अखरात भी, जो मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, है, फिर कैसे उठाया जाएगा, कैसे हिसाब होगा, तो ये सारे चीजें उन लोगों को अजीब सा लगता था। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद, रिसालत, अखरात का दावत देते थे तो लोगों ने झुटलाते भी थे, तकलीफ पहुंचाते थे, फिर अजीब अजीब चमत्कार दिखाने के लिए डिमांड भी करते थे कि ये दिखाइए, ये मुजज़्ज़ा लाइए, वो लाइए, तब हम बिलीव करेंगे, इसी तरह सताते थे। तो ये सारे उन लोग जो लोग खिलाफ थे, उन लोगों का इसी तरह सोच का, ये जहनियत का जवाब ये सूरा में बहुत सारे आयत में हमें मिलते हैं। देखते हैं हम तर्जुमा के तरफ, आयत नंबर 34। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पहले भी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले भी बहुत से रसूल झुटलाए जा चुके हैं, मगर इस झुटलाने पर और उन तकलीफों पर जो उन्हें पहुंचाई गई उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गए, यानी अल्लाह की मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है, और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसकी खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी है। तो यहाँ अल्लाह क्या समझा रहे हैं कि जो लोग हक परस्त है, उनके लिए जरूरी है कि वो एक लंबी मुद्दत तक, एक लंबा टाइम आजमाइश के अंदर रहे, अपने सबर, सच्चाई, अपना कुर्बानी का, अपना ईमान का मजबूती का, और अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा का इम्तिहान दे के अपना जो सच्चाई, अपना हक परस्ती, अपना नेक होना ये साबित करे ना। फिर आखिर में अल्लाह का नुसरत, अल्लाह का मदद वक्त पर सामने आ जाएगा। वक्त से पहले किसी के लिए कोई भी मदद नहीं आएगा। तो ये सबर पिछले नबी रसूल भी किया था, आपको भी करना होगा। अभी इतना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग खिलाफ थे उनके लिए बहुत परेशान थे, तो अल्लाह ने फरमा रहे एक लंबा टाइम सबर के बाद अल्लाह का मदद पहुंचते हैं। तो यहाँ से हमें भी सबक लेने का है कि हमारा जिंदगी में भी आजमाइश आते हैं, मुश्किलात, परेशानी आते हैं, कभी कभी चारों तरफ से भी होता है, कहाँ से हम निकले, क्या करें, डिसाइड नहीं कर पाते। तो हम ये आयत के रोशनी में खुद को भी रोशन करें कि हमें आजमाइश देना है, सब्र करना है, हक किया है उसी पर जमे रहे तो अल्लाह का मदद, अल्लाह का नुसरत वक्त पर जरूर पहुंच जाएगा। आयत नंबर 35। फिर भी अगर उन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो अगर तुमसे कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो उन सब को हिदायत पर जमा कर सकता था, इसीलिए नादान मत बनो। यहाँ जो लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दिन, ये सूरा मक्की दौर का ऑलमोस्ट आखिर हिस्सा में,
तो इतना साल 10-12 साल समझाते समझाते भी नहीं समझ रहे हैं। तो कभी कभी आपका दिल में लगता था कि इन लोगों ने जब मुजेजा मांग रहे हैं, चमत्कार मांग रहे हैं, अगर अल्लाह ने दिखा दे और इन लोगों ने ईमान लाए तो अच्छा होगा। इसी तरह उन्होंने कभी कभी दिल में लगता था उनका, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए उनका दिल में दुख दर्द था। कोई भी इंसान दुनिया में गलती करे और जहन्नम का मुस्तहिक बने, हकदार बने, ये उन्होंने बिल्कुल सोच नहीं पाते थे। उन्होंने चाहते थे कि तमाम लोग अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चले, तौहीद पर जमे रहे, ईमान लाए और जन्नत का हकदार बने। तो इसीलिए किसी ना किसी हाल में लोग ईमान लाए, यही उनका दिल का ख्वाहिश होता था। तो इसीलिए अल्लाह ने उन्हें फरमा रहे हैं कि उन लोग का बेरुखी अगर बर्दाश्त नहीं हो रहे, मुजेजा मांग रहे हैं, तो अगर तुम्हारा बस में है, तुम कर सकते हो, तो जाओ जमीन में कुछ सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगा और कुछ मुजेजा लाओ। लेकिन ऐसा तो कोई इंसान नहीं कर सकते, और मुजेजा लाने में भी इन लोग ईमान नहीं लाते। तो अल्लाह ने फरमा रहे कि अगर अल्लाह चाहता ना तो सबको हिदायत पर जमा देता, इसीलिए नादान मत बनो। अल्लाह ने इंसान को किस तरह बनाया है, अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर लाता। फरिश्ता, देखो फरिश्ता एक मखलूक है, सिर्फ अल्लाह का जो पाकी बयान करते हैं, इबादत करते हैं, कोई नाफरमानी उनका मालूम नहीं फरिश्तों का। अल्लाह ने उन्हें इसी तरह बनाया। अगर अल्लाह चाहता तो सभी इंसान को हिदायत पर जमा देता, लेकिन अल्लाह ने इंसान को जो बनाया, किस तरह बनाया है कि इंसान में अकल दिया है, इल्म दिया है, हक और बातिल को फर्क करने का सलाहियत दिए है, और तमाम चीजें दलीलों के साथ अल्लाह ने जाहिर कर दिया है कि ये चीज अच्छा है, ये करोगे तो जन्नत का हकदार बनोगे, ये चीज गलत है, ये करोगे तो जहन्नम का हकदार बनोगे। इसी तरह अल्लाह ने तमाम चीजों दलीलों के साथ बयान की है और इंसान को अकल दी है और चूज करने का, सिलेक्ट करने का इख्तियार दिया है कि चाहो तो तुम कुफर कर सकते हो, चाहो तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, चाहो तो तुम रिजेक्ट करो, चाहो तो तुम एक्सेप्ट करो। तुम्हें दोनों रास्ता है, जो तुम्हें पसंद है वो उस पर चलने का इख्तियार दिया है। और अल्लाह चाहता है कि इंसान अपना इल्म के बुनियाद पर, अपना अकल के बुनियाद पर हक और अल्लाह का जो निशानियां, ये देखने के बाद हक को पहचान लेंगे और हक पर जम जाएंगे, अल्लाह का जो अहकाम उस मुताबिक जिंदगी बिताएंगे, एक अखलाकी बुलंदी पर वो खुद उस दर्जे पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह का ये मतलब है कि अपना अकल के जरिए अल्लाह का निशानियों को देख के अपना खालिक को पहचान ले और खालिक का ही बड़ाई बयान करे, खालिक का मर्जी के मुताबिक ही अपना जिंदगी को ढाल ले और आखिर में जन्नत का हकदार बने। तो इसीलिए अल्लाह बोल रहे हैं कि नादान मत बनो, अल्लाह अगर चाहता तो सबको हिदायत पर ला सकता था। आयत नंबर 36, हक की दावत पर लब्बाइक वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं, रहे मुर्दे तो उन्हें तो अल्लाह बस कब्रों ही से उठाएगा और फिर वो वापस लाए जाएंगे। सुनने वाला से मुराद वो लोग है जिनका दिल जिंदा है, जमीर जिंदा है, जो हक को पहचान लेते और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और मुर्दा कौन लोग? मुर्दा वो लोग जो लकीर के फकीर बने अंधों की तरह चले जा रहे हैं। अगर उस लकीर से हटकर कोई बात कबूल करने का होता, चाहे कि वो हक भी हो, लेकिन वो कबूल नहीं करते, उसका दिल तक वो पहुंचते ही नहीं। आयत नंबर 37, ये लोग कहते हैं इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी? कहो अल्लाह निशानी उतारने की पूरी कुदरत रखता है, मगर उनमें से ज्यादातर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। यहाँ निशानी का मतलब मुजेजा, वो लोग मुजेजा का तलब करते थे कि बिल्कुल बता देते थे कि इसी तरह मुजेजा लाओ। ये हम सूरह बनी इसराइल में पढ़ेंगे, जो बिल्कुल फरमाइश करते थे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ निशानी से मतलब मुजेजा। फिर ये नेक्स्ट आयत में अल्लाह ने होशियार करने के लिए तमाम जानदार का हशर का बयान हुआ है। आयत नंबर 38,
जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी ही तरह की जातियां हैं। हमने इनकी तकदीर के लिखे में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर ये सब अपने रब की तरफ समेट जाते हैं। यानी तुम लोग मुजेजा मांग रहे हो, निशानी मांग रहे हो, अपना चारों तरफ देखो, निशानी फैला हुआ है। ये जो परिंदा किस तरह उठते हैं, कौन उसे थाम के रखे हैं, वो जो खुला जगह में क्यों नहीं गिर जाते, किसने उसे थाम के रखा है, किसने उसका बॉडी को इसी तरह बनाया है कि वो उड़ सकता है, हम नहीं उड़ सकते। जमीन में चलने वाले वो किस तरह रहते हैं, तो अपना चारों तरफ आंख खोलकर देखो, निशानी मिल जाएगा। इसी तरह बहुत सारे निशानी हम देखते हैं कि खुद के हम खुद ही एक निशानी अपना के तरफ हम देखे तो वो भी एक निशानी हमें दिखेगा अल्लाह का। क्योंकि देखो हमारा जो चेहरा है, हमारा कभी लगता है ना, लोग कहते हैं ना कि तुम जब हंसती हो बिल्कुल तुम्हारा दादी जैसा दिखती है, तुम्हारा दादी इसी तरह हंसती थी। तो दादी को तो हम देखा भी नहीं, दादी का हंसी हमने देखा नहीं, हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, हमने देखा ही नहीं। लेकिन उनका हंसी और मेरा हंसी में सिमिलरिटी कैसे आ गया, किसने दादी का चीज मुझ में डाल दिया है। हम खुद ही तो एक निशानी हूँ अल्लाह का, वाहिदानियत का, अल्लाह जो पैदा किया है, अल्लाह का ये जो कुदरत का हम अगर देखे तो अपना में ही बहुत सारे निशानी हमें दिखाई देगा। और आसपास में तो है ही ये जो परिंदा, ये जो तमाम जानदार चीज। आयत नंबर 39, मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुटलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। भटकाना यानी क्या है, जो लोग जहालत पसंद करते हैं, जाहिल रहना चाहता है, उन लोगों को देखने का और समझने का जो सलाहियत है वो छीन लेते हैं, तौफीक भी नहीं देते हैं। भटकाना का मतलब ये है। और सीधे रास्ते यानी जो लोग खुदा परस्त, जो हक को पसंद करते हैं, उन लोगों को दिल में अल्लाह ने इसी तरह तौफीक भी देते हैं, सलाहियत भी देते हैं। हर चीजें में वो अल्लाह का निशानी उसे दिखते हैं, हर चीजें में अल्लाह का बड़ाई वो दिखते हैं। आसमान की तरफ नजर डालो तो बाप रे, ये आसमान अल्लाह ने बनाया, कितना बड़ा है, अल्लाह का ताकत कितना है, कोई भी पिलर नहीं, ये आसमान सालों तक साल इसी तरह चल रहे हैं। एक पेड़ पौधा को देखे, कुछ भी चीजें देखे तो अल्लाह का निशानी, अल्लाह का तौहीद उसे दिख जाते हैं। आयत नंबर 40, इनसे कहो जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो अगर तुम सच्चे हो। ये भी उन लोगों के लिए बताया जा रहे हैं जब कोई बड़ा मुसीबत आते हैं। ये हम भी देखते हैं, जब लगता है बहुत बड़ा मुसीबत आ गए हैं तो कोई पीर फकीर दरवेश जिसके या आस्ताना जहाँ जाते हैं दुआ मांगते हैं, उसी टाइम जब बड़ा मुसीबत आता है तो किसी को याद नहीं आते, एक अल्लाह को याद आ जाता है। हम लोग कहते हैं कि या अल्लाह ये मुसीबत से निकाल दीजिए, ये मुसीबत टाल दीजिए, हमें बचा लीजिए, तो एक अल्लाह याद आ जाते हैं। ये इंसान का फितरत में है, नफ्स में है। हम जानते हैं अल्लाह ही हर चीजें का मालिक है, तो ये हमारा अंदर ये चीज मौजूद है। इसीलिए दीन इस्लाम को कहते हैं फितरती दीन, यानी जो नॉर्मल नेचुरल। और तब भी हम क्यों नहीं मानते? ये जो नहीं मानते इसी को कुफर करना बताता है। कुफर का दो माने हैं, एक है इनकार करना, एक है छुपाना। हम दिल जानती हूँ कि अल्लाह एक है, हर चीजें का मालिक है, लेकिन तब भी ये बात को छुपा देते हैं और दूसरे को सिफारिश के लिए, दुआ के लिए दूसरे के पास जाते हैं। तो इस आयत में वही बोल रहे हैं, जब बड़ा मुश्किल में पड़ते हो तो एक अल्लाह के तरफ ही तुम अपना पुकार पहुंचाते हो। 41, उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो, फिर अगर वो चाहता है तो उस मुसीबत को तुम पर से टाल देता है। ऐसे मौके पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो। जो
जो शरीक जो पीर फकीर को ऐसा जनरली कोई दुआ के लिए जाते हैं, सब उसी टाइम भूल जाते हैं। आयत नंबर 42, तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे, तुमसे पहले यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों की मुसीबतों और परेशानियों में डाल दिया, मुसीबत और परेशानी में डाल दिया। क्यों? ताकि वो अजीजी के साथ हमारे सामने झुक जाए। तो जब मुसीबत और परेशानी आए तो हमें क्या करना चाहिए? अजीजी इख्तियार करना चाहिए और अल्लाह के सामने झुक जाना चाहिए, क्योंकि हर चीजें, ये मुसीबत, ये परेशानी, ये भी अल्लाह के तरफ से है। अगर हमने सब्र कर लिया, अगर हमने उसे अल्लाह की हुक्म के मुताबिक उसका फैसला कर लिया है, तो वो मुसीबत भी टल जाएगा, हम निकल आएंगे। तो करना क्या होगा? अजीजी इख्तियार करना होगा, नरमी के साथ पेश आना होगा और अल्लाह के सामने झुक जाना होगा। इसीलिए नेक्स्ट आयत, इसीलिए जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने अजीजी अपनाए, मगर इनके दिल तो और सख्त हो गए और शैतान ने इनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फिर जब उन्होंने इस नसीहत को, कौन सा नसीहत, जो उन्हें की गई थी, भुला दिया, तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उनके लिए खोल दिया, यहाँ तक कि जब वो उन बख्शिशों में जो उन्हें अता की गई थी खूब मगन हो गए तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया और अब हाल ये था कि वो हर भलाई से मायूस थे। ये जो आयत है, आयत नंबर 43-44, ये लग रहे हैं कि जो हाई अलर्ट जो बोलते हैं, बहुत बहुत हमें गहराई से इसे सोचने का है। पहले अल्लाह ने कुछ मुश्किलात दिए हैं, फिर अजीजी के साथ झुक गए तो अल्लाह ने बचा लेते हैं। फिर कभी कभी अल्लाह ने, अगर जो नसीहत की गई थी अल्लाह के हकाम के मुताबिक हम उस पर नहीं झुका है, तो क्या होता है? अल्लाह ने खुशहाली देते हैं, खुशहाली प्रॉस्पेरिटी देते हैं। और हम जनरली क्या होता है, हमारा जिंदगी में जब कुछ तरक्की होते हैं, कुछ प्रॉस्पेरिटी आते हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हमें लगता है हम तो सही राह पर हूँ, अल्लाह हम पर खुश है, हमें इतना दे रहे हैं, तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं, समझते हैं कि ये हमारा अपना प्लान, हमारा अपना जो एजुकेशन प्लान, हमारा अपना कोशिश से ये खुशहाली है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश, अगर बदहाली या खुशहाली में भी अल्लाह को हम याद रखें, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक वो खुशहाली को हम एंजॉय करें, तो इट्स गुड। अदरवाइज अगर हम भूल जाए, अगर वो खुशहाली में मगन हो जाए, उसे एंजॉय करने में ही मगन हो जाए, तो क्या होगा? अचानक अल्लाह का पकड़ आ जाएगा और तमाम भलाई से मायूस हो जाएंगे। तो ये जो आयत है, यहाँ से हमें बहुत ज्यादा सबक लेने का है और याद रखने का भी है कि जब खुशहाली हो ना, तो हमें सोचना चाहिए, और जिस चीज में खुशहाली हुआ है उसमें अल्लाह का जो हुक्म है उस मुताबिक वो खुशहाल उसे इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आयत नंबर 45, इस तरह उन लोगों को जड़ कट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म किया था, और तारीफ है सारे जहानों के रब अल्लाह के लिए कि उसने उनकी जड़ काट दी। ये नबी, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी देखने और सुनने की ताकत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा और कौन सा खुदा है जो ये ताकतें तुम्हें वापस दिला सकता हो? देखो किस तरह हम बार बार अपनी निशानियां उनके सामने पेश करते हैं और फिर ये किस तरह उनसे नजर चुरा जाते हैं। यानी आंख, कान, दिल, ये खास ऑर्गन होता है। इसका खुसूसियत क्या है? आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, फिर चीजें जो हक है वो हम दिल में एक्सेप्ट करते हैं, कबूल कर लेते हैं। तो आंख, कान, दिल, यही है हमारा तमाम चीजें को मतलब समझने का जरिया। तो ये खुसूसियत अगर आंख से हम ना देख पाए, कान से हम ना सुन पाए, दिल से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ये ऑर्गन का जो काम, जो स्पेशलिटी, अगर वो अल्लाह छीन ले तो कौन है जिसे वापस देगा?
تو اللہ نے الگ الگ طریقے سے سمجھا رہے ہیں, کبھی ڈرا کے, کبھی خوشخبری دے کے, کبھی لبھا کے, لالچ دے کے, پھر کبھی چیتاونی دے کے بھی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. آیت نمبر 47, کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور برے کردار والوں کے لیے ڈرانے والے ہو. پھر جو لوگ ان کی بات مان لے اور اپنے رویے کو سدھار لے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. رسول اللہ نے کس لیے بھیجا, کس لیے بھیجتے ہیں؟ جب قوم میں برائے آ جاتے ہیں, لوگ کتاب اور احکام کو بھول جاتے ہیں, شریعت میں ملاوٹ آ جاتے ہیں, تب اللہ نے رسول بھیجا اور جو حق اسے یاد دلایا, جو شریعت ضرورت ہوا تو قائم کی, ادروائز شریعت کو یاد دلایا. وداؤٹ رسول بھیجے بنا اللہ نے کوئی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے. یہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, رسول بھیجے بنا کوئی قوم کو عذاب نہیں دیا جاتا. کیونکہ ہم انسان بہت بحث کرنے والے ہیں نا, جنرلی انسان یہی کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. اسی لیے اللہ نے رسول بھیجتے ہیں, کتاب بھیجتے ہیں, جو چیز بھول گئے تھے, جو حق وہ سمجھا تو اس کا تعلیم دیتے ہیں اور حق کے طرف دعوت دیتے ہیں. جو نیک کردار اس کے لیے خوشخبری جنت کا, اور جو برے کردار والوں اسے بھی ڈراتے ہیں کہ اسی طرح برے چیزیں اختیار کر کے رکھو گے تو جہنم کا عذاب ہے, اسی طرح ڈرانے والا ہے. آیت نمبر 49, اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ اپنی نافرمانیوں کے بدلے میں سزا بھگت کر رہیں گے. آیت نمبر 50, یہ نبی ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اتاری جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھر آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ آیات میں بھی, آیت نمبر 50, اس میں بھی عقیدہ کو درست کرنے کا ہے. رسول کا اسپیشلٹی, خصوصیت کیا ہے؟ رسالت. ان کے پاس کوئی غائب کا علم نہیں ہے, نہ ہی تو ان کے پاس خزانہ ہے, نہ ہی تو انہوں نے کچھ نقصان کر سکتے ہیں, نہ ہی تو کچھ فائدہ دلا سکتے ہیں. انہوں نے ایک انسان, ان کا اسپیشلٹی کیا ہے؟ رسالت. اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتا ہے, اس مطابق وہی انہوں نے خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں, دوسروں کو بھی بلاتے ہیں, دوسرے تک بھی پہنچا دیتے ہیں. یہی ہے ان کا. اسی ٹائم نادان لوگ کہتے تھے نا کہ ارے یہ تو نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے, اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کے ساتھ ایز اسپیشل یہ ہے, تو کیوں اللہ انہیں خزانہ نہیں دیتے, کیوں اتنا تکلیف میں رہتے ہیں, کبھی تو قرض بھی لینا پڑتا, ایسا کیوں؟ وہ بولے تو خزانہ نکال آئے, غائب کا خبر بھی دے دے. اسی طرح جو اسی ٹائم قریشی مکہ کہتے تھے, اسی کا جواب میں یہ بتایا جا رہے ہیں کہ کبھی تو رسول اللہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں, میں غائب جانتا ہوں, یا میرے پاس خزانہ ہے. انہوں نے ایک انسان, انا بشر مثلکم, بار بار انہوں نے یہی بولا, میں ایک بشر ہوں, میں ایک انسان ہوں. انسان کا جو پرابلم, جو تکلیف, جو ڈیمانڈ, جو اسپیشلٹی, ان میں ہر ایک چیز تھا. تو ڈیفینس کیا ہے؟ یہوا الیہ, میرے طرف وہی نازل ہوتا ہے. رسالت, ان کا اسپیشلٹی رسالت. تو یہی بتایا, اس آیت میں بتایا گیا. تو اسی میں ہمارا عقیدہ کو بھی درست کرنا ہے کہ رسول بھی ایک انسان, لیکن اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا جن پر وہی نازل ہوتا تھا. آیت نمبر 51, اور اے نبی تم اس وحی کے علم کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی
ऐसा ताकतवर ना होगा जो उनका हामी और मददगार हो या उनकी सिफारिश करे। शायद कि इस नसीहत से खबरदार होकर वो खुदातरसी का रवैया इख्तियार कर ले। तो यहाँ भी ये हम सूरा बकरा में और भी पहले भी हम पढ़ के आए हैं कि क़यामत के दिन ना ही तो कोई मददगार होगा, ना ही कोई सिफारिश कर सकेंगे, ना ही तो कोई बदला दे के फिदाया दे के हम बच सकेंगे। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं और यहाँ भी वही बताया जा रहे हैं। तो इसी तरह खबरदार करने से क्या होगा, शायद खुदातरसी का रवैया इख्तियार कर ले। तो यहाँ भी हमारे लिए करने का काम क्या है कि खुदातरसी का रवैया इख्तियार करना, कि अल्लाह से तरस खाए, अल्लाह का खौफ दिल में हो और अल्लाह ने जो चीज माना किया उससे रुक जाए, अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो अपना ले। आयत नंबर 52, और जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं और उनकी खुशनुदी की तलब में लगे हुए हैं, उन्हें अपने से दूर ना फेंको। उनमें उनके हिसाब में से किसी चीज का भार तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज का भार उन पर नहीं। इस पर भी अगर तुम उन्हें दूर फेंकोगे तो जालिमों में गिन जाओगे। तो यहाँ क्या बताया जा रहे हैं कि कुरैश का जो बड़े बड़े सरदार थे, उन लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खिलाफ थे, एक रीजन ये भी था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमात में, ग्रुप में जो सोसाइटी का निचला तबका का लोग भी थे। यानी हर जमाना में, हर नबी रसूल में हम यही देखा, सबसे पहले हक को एक्सेप्ट किया जो निचला दर्जा का लोग है, गुलाम, गरीब, इन्हीं लोगों ने हक को एक्सेप्ट की, क्योंकि उन लोगों का दिल भी साफ रहते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, इन लोग गुलाम थे, उन्हीं का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लोज थे। तो उन लोगों का अल्लाह ने फरमा रहे हैं कि इन लोग अल्लाह का खुशनुदी का तलब में लगे हुए हैं, तो अपने से इन लोगों को दूर ना फेंको। और किसी का हिसाब, सबका अपना अपना हिसाब, आदमी का जो बुराई और भलाई का जिम्मेदार वो खुद है। किसी का हिसाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब भी और कोई नहीं देगा और दूसरे का हिसाब भी आपको देना नहीं पड़ेगा। अपना अपना हिसाब का जिम्मेदार अपना अपना है। फिर आयत नंबर 53, असल में हमने इस तरह उन लोगों में से कुछ को कुछ के जरिए से आजमाइश में डाला है, ताकि वो इन्हें देखकर कहें, क्या ये है वही लोग जिन पर हमारे दरमियान अल्लाह की मेहरबानी और करम है? हाँ, क्या खुदा अपने शुक्रगुजार बंदों को इनसे ज्यादा नहीं जानता है? यानी जो गरीब लोग थे, गुलाम लोग, उन लोग तो सोसाइटी में मामूली लोग थे, और सबसे पहले ईमान का तौफीक इन लोगों को ही मिला था। तो जो लोग दौलतमंद थे, उन लोगों को ये चीज आजमाइश में डाल दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब दावत शुरू हुआ था तो ये गुलाम, इन लोगों ने, गरीब, इन लोगों ने ज्यादातर ईमान लाए थे। तो ये जो सोसाइटी का ऊंचा दर्जा का था, सरदारों के लिए इम्तिहान का सबब बन गई थी। इन गरीबों को मजाक उड़ाते थे, कहते थे क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की मेहरबानी करम है? आयत में यही है ना, अल्लाह की मेहरबानी और करम है। उनका मतलब ये होता कि ईमान वालों पर हकीकत में अल्लाह का कुछ एहसान होता तो ये सबसे पहले हम पर होता। इसी तरह जो बड़े लोग थे उन लोगों का सोच था। लेकिन अल्लाह ऊपर का जो चमक दमक ये तो नहीं देखता है, अल्लाह दिल का हाल देखता है, ईमान देखता है, तकवा देखता है। आयत नंबर 54, जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे कहो तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने रहम और करम का रवैया अपने को लाजिम कर लिया है। ये उसका रहम और करम ही है कि अगर तुम में से कोई नादानी के साथ कोई बुराई कर बैठा हो, फिर उनके बाद तौबा करे और सुधार कर ले तो वो उससे माफ कर देता है और नरमी से काम लेता है। हाँ, तुम पर सलामती हो, सलामुन अलैकुम। यानी ये जब कोई आए तो ये दावत के लिए भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है। जब कोई आए तो उसे वेलकम करे, उसे नरमी के साथ पेश हो, और जो दीन का जो अच्छा चीज बताए, इनकरेज करे, है। तो ये दावत के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और जबकि सरदारों ने
ان غلاموں کے لیے نکتہ کرتے تھے تو بتایا جا رہے ہیں کہ نادانی کے ساتھ کچھ برائی کر بیٹھا، جب نہیں جانتے تھے تو کچھ برائی کیا تھا، لیکن آپ توبہ کی اپنا سدھار کر لی تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو یہاں ہمیں بھی سبق لینا ہے کہ ہمارا بھی نادانی میں جانے انجانے میں جو غلطی ہوا ہم بھی اسے توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دیں گے۔ توبہ کے بارے میں حدیث بھی ہمیں معلوم ہے، ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا وہ حدیث پڑھنے کے لیے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیوں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ یہ نبی ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، سیدھا راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اور میرے اختیار میں وہ چیز ہے ہی نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہیں۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کی ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یعنی اب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو انکار کر رہے ہیں، تو ہم انکاری ہیں تو عذاب لاؤ، کیوں عذاب نہیں ہوتا؟ تو اسی کا جواب یہ آیت میں دیا گیا کہ عذاب لانے کا اختیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہی نہیں۔ کہو اگر کہیں وہ چیزیں میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہے جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب کو وہی جانتا ہے۔ پیڑ سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے اندھیرے پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس کو وہ نہیں جانتا ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے دن وہ تمہیں اسی کاروبار کی دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہاں جو ہے آیت 59 اسی میں غیب کا کنجی جو عذاب لانے کے لیے کہتے تھے یا معجزہ، لیکن غائب کا جو غیب ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حدیث میں آتے ہیں غیب 5 ہے۔ ایک قیامت کا علم، قیامت کب ہوگا، بارش کا نزول، کہاں کب کتنا بارش برسے گا، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے بچہ، اور کال کیا ہوگا، اور موت کب آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ 5 غائب ہے۔ یہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اور جو آیت نمبر 60 میں جو موت کا بات ہے کہ اللہ جانوں کو قبض کر لیتا ہے، موت کے وقت، اور جن کا موت کا مقرر وقت نہیں آیا اس کا نیند کے وقت، نیند کو یہاں چھوٹی موت کہا گیا، اور جو موت اسے بڑی موت۔ نیند کے حالت میں ہمارا جو سوجھ بوجھ وہ رد ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی موت۔ پھر جس کا ابھی بھی حیات ہے اسے نیند کے بعد اللہ نے پھر روح واپس دے دیتے ہیں، وہ جاگ کر اٹھ کے اپنا مقرر جتنا حیات اللہ نے مقرر کیا اسی میں وہ پھر لگ جاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 60 میں یہ بتایا گیا ہے۔ اگر کہنے میں سننے میں کچھ غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کا توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام